છે, મારે શ્રમણની સેવા કરવી છે, મારે વિહાર સેવા કરવી છે, મારે શ્રમણ સેવા કરવી છે, મારે વિહાર સેવા કરવી છે, મારે શ્રમણ સેવા કરવી છે, મારે વિહાર સેવા કરવી છે, મારે શ્રમણ સેવા કરવી છે. પારિવારિક વિહાર ગ્રુપનો પ્રસંગ છે. વચ્ચે ખાલી 2 મિનિટ આપની લઈશું. આજે આપનો વિહાર ગ્રુપનો પ્રસંગ છે. આવતા રવિવારે ચેમ્બુરમાં જે પૂજા કરવા આવી નથી શકતા અને બેડ પર છે, અને જે લોકોને ખાસ આપણે એ લોકોને એકવાર વર્ષમાં એકવાર આપણે પૂજા કરવા એને લાવી શકીએ આપણા ચેમ્બુર તીર્થમાં, એની માટેનું દ્રશ્ય આવતા રવિવારે સર્જાશે. એ પણ એક મિલન હશે. આજે તમારું પારિવારિક મિલન વિહાર ગ્રુપનું છે, આવતા રવિવારે મિલન છે એ ભાવિકો અને આદિશ્વર દાદાનું મિલન. આ મિલન કેવું હશે? આમાં જે લોકો બેડ પર હશે, જે લોકો સાવ બેડરેસ્ટ હશે, જે લોકોને આપણે સ્ટ્રેચર, એમ્બ્યુલન્સ, વ્હીલચેર વેન એની અંદર લઈને આવશું. પણ આને લીધે અમે લોકો કાંદીવલીના છીએ. અમારો ગ્રુપ ટોટલ 15 પ્રસંગ આમાં થઈ ગયા છે. હવે આ 16મો પ્રસંગ છે. આ પ્રસંગની અંદર અમને લોકોને તમારી હેલ્પ જોઈએ છે, કારણ કે તમે લોકો ચેમ્બુર તીર્થની અંદર અલગ અલગ એરિયામાંથી છો, પણ અમારી ઘરે ડેટા નથી કે કોના ઘરે કોણ બીમાર છે, કોના ઘરે કોણ બેડરેસ્ટ પર છે. તો આપ લોકો આજથી હળી મળીને બધા લોકો જો અમને સપોર્ટ આપશો તો અમને રોજ સવારથી સાંજ તમે વિચારશો ને તો તમને યાદ આવશે કોણ કોના ઘરે બીમાર છે, કોણ ઘરે બેડરેસ્ટ છે. એમાં ખાસ આ બચ્ચાઓ અને બહેનો ખાસ આમાં હેલ્પ કરી શકશે, કારણ કે એ લોકો સ્કૂલમાં મૂકવા જાય તો બધી વાતો થતી હોય, બરાબર. નીચે બસ પર મૂકવા જાય ને તો લોકોની બધી જ વાત થઈ ગઈ, કોને સાસુ બીમાર છે, કોને ત્યાં હોસ્પિટલમાં ગયા, કોણ અત્યારે હોસ્પિટલમાંથી ઘરે આવ્યા, એ બધી જ જાણકારી આ લોકો પાસે હોય. એ જાણકારીનો સદુપયોગ હવે કરવાનો આવ્યો છે. તો ચેમ્બુરમાં આ પ્રસંગ ઉજવ્યા છે. આમાં ગોવંડી, તિલકનગર, ચુનાભટ્ટી દરેક જગ્યાએથી ભાવિકોને આપણે લઈને ચેમ્બુરમાં આપણે પૂજા કરાવવાની છે. આની અંદર એ લોકોને પહેલાં જલ પૂજા, ચંદન પૂજા, એની પછી એ લોકોને 9 અંગે પૂજા દાદાની, અને પછી ભાવ પૂજા, અને પછી આપણે ઘરે એક જણને કરાવવાના છે. એ લોકોને જે સમય ફાવશે એ સમય આપણે કરાવશું. આમાં એવું નથી કે 3 કલાક એ લોકોને રહેવું પડશે. એ લોકો આવ્યા, એ લોકોને પૂજા કરાવીને ભાવ પૂજા, એ લોકોનું બહુમાન, અને પછી એ લોકોને ઘરે પાછા પરત બહુમાનપૂર્વક છોડશું. તો આની અંદર આપને એક જ અમને હેલ્પ જોઈએ છે. આજથી તમે લોકો જે પણ તમને હોય, અમર બિલ્ડિંગ આની અંદર B302માં એક આંટી છે, અમારે ત્યાંથી બહેનો પણ આવશે, આપની સાથે ભાઈઓ પણ આવશે, બરાબર. એ લોકો રાત્રે આપણે એ લોકોના ઘરે જઈશું, એ લોકોને સમજાવવું પડશે. આની અંદર એ લોકો હા નહીં પાડી દે. તમે એમ કહેશો કે આ B302માં છે, હું એને લઈને આવીશ, તે દિવસે સવારે ના જ પાડશે. સવારે આપણે લેવા જશું એટલે ના પાડે. એ લોકો ડરી ગયેલા હોય, એટલે એ લોકોને પહેલાં બધો વિડીયો, એ લોકોને વાત, એ લોકોને પંપાડીને જરા સમજાવવું પડશે કે આંટી તમને પૂજા કરવી છે, તમે ચાલો અમે તમને લઈ જઈશું, અમે તમારા જ છીએ, એવી રીતની બધી વાત કરવી પડશે. એ માટે તમે આજથી બધા બહેનો અલગ એરિયામાંથી, કોલોની છે કે સમથિંગ છેડાનગર છે કે ગોવંડી છે, બધામાંથી તમને જે 2, 3, 5 નામ યાદ આવે, નામ, બિલ્ડિંગ નંબર, આટલું ખાલી રાખીને રાખો. રાત્રે અમે લોકો ફોન કરશું. અમને ખાલી 5 થી 6 બહેનોના નામ, તમે નામ ને નંબર આપો, એ લોકો ત્યાંથી બહેનો અમારા ફોન કરશે. એ લોકો અહીંયા આવશે સાંજે 6 વાગ્યા પછી, 6 થી 9, 10 વાગ્યા સુધી તમે ટાઈમ આપશો, જેટલો પણ તમે આપી શકો એ લોકોને. કારણ કે અમે લોકો એના ઘરે જઈએ ને એ લોકોને અનનોન લાગીએ છીએ, ભાઈ તમે કોણ છો, ક્યાંથી આવી ગયા છો, એવું થાય. તો આપ લોકો સાથે આવશો, જે પણ તમે સમય આપશો, 1 કલાક, 1.5 કલાક, 2 કલાક, તમે કહેશો કે સવારે અમે આવશું, તો બપોરે 2-3 કલાક આવશું, તો એ ટાઈમે એ લોકો આવશે. પણ તમે ખાલી અમને ટાઈમ 6 દિવસ જ બાકી છે, સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, 5 દિવસ જો તમે સમય આપશો તો આ કાર્ય આપણું મસ્ત થઈ જશે. કોઈ પણને પૂજા બાકી નહીં રહે. અને જ્યારે આ દ્રશ્ય સર્જાશે ને, રિયલી બધાના આંખમાં પાણી હશે કે આપણે શું કરે. તો ખાસ આની માટે નમ્રભરી વિનંતી છે કે આની અંદર અમને ખાસ બધા ભાઈઓ અને બહેનો ખાસ આની અંદર અમને હેલ્પ કરજો. આજથી તમે નામ, અમને 3 બહેનોના નામ આપો અને 3 ભાઈઓના, એને જ અમે કોન્ટેક્ટ કરશું. અને પછી આપને કોન્ટેક્ટ કરીને અમે તમે કહેશો કે આ વાગે અમે લોકો જઈશું સાથે, ત્યાંથી બહેનો એ સમય આવી જશે અને આ બેની સાથે જઈએ. આટલું ખાલી કરી આપજો.
વોટ્સએપ પર હમણાં વીર પ્રભુનો વેશ ધરી સંયમ શણગાર ધરે દેવો પણ સાધુ જીવનનો ઓ જય જયકાર કરે ઓ જય જયકાર કરે ઓ જય જયકાર કરે ઓ જય જયકાર કરે હર ખાવે કોઈ ઉપસર્ગો વરસાવે કોઈ ઉપસર્ગો વરસાવે એનું હૈયું તો રમતો સમતા ભાવે સન્માન અને અપમાન ભૂલી સરખો ઉપકાર કરે દેવો પણ સાધુ જીવનનો સૌ એક સાથે ઓ જય જયકાર કરે ઓ જય જયકાર કરે कोई निंदे ने कोई वंदे हाँ वंदे रे भाई वंदे भीतर गिरे आनंदे आनंदे रे आनंदे मुनिवर संगम तीरथ छे मुनिवर संगम तीरथ छे मारे रहવું છે મુનિવરના સંબંધે મુનિરાજ તણા આજીવનથી ઉદય ભવ પાર કરે દેવો પણ સાધુ જીવનનો સૌ એક સાથે હો જય જયકાર કરે હો જય જય ભાઈ બહેનોનો વાતોમાં તો બહુ જોરથી અવાજ આવતો હતો પણ ગીતમાં કોઈનો અવાજ નથી આવતો ચાલો સૌ એક સાથે હો જય જયકાર કરે હો જય જયકાર કરે હો જય જયકાર કરે હો જય જયકાર કરે જેના પાવન પગલાથી ધરતી ધબકાર કરે ને વીર પ્રભુનો વેશ ધરી સંયમ શણગાર ધરે દેવો પણ સાધુ જીવનનો હો જય જયકાર કરે હો જય જયકાર કરે ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુજી અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ આગમન તારું આગમન આગમન તારું આગમન રોમે રોમે હર્ષની વૃદ્ધિ કરાવે છે સાધનાથી આત્મની શુદ્ધિ કરાવે છે સૌ એક સાથે આગમન તારું આગમન તારું આગમન હલો આગમન તારું આગમન આગમન તારું આગમન વાગે છે ઢોલ ધમ 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 વાગે છે ઢોલ હૈયામાં ઉછળે કલ્લોલ હૈયામાં ઉછળે કલ્લોલ ઓ મારા ગુરુવર આવો ને આંગણ સજાવો ને ઓ પ્યારા સૂરીવર આવો ને આંગણ સજાવો ને ઓ મારા ગુરુવર આવો ને આંગણ સજાવો ને પ્યારા સૂરીવર આવો ને આંગણ સજાવો ને इच्छामि कमासमो वन्देयो जाणिजाय हेणोन्दामि इच्छामि कमासमो वन्देयो जाणिजाय हेणोन्दामि इच्छकार स्वदेशी सुखदप शरीर निरावाद सुख संयम यात्रा निरोधोजी स्वामी साचा छेजी आत्माનો લાભ લેશોજી इच्छामि कमासमो वन्देयो जाणिजाय हेणोन्दामि चा कारण संधि सह भगवान अमुट्यम्य अवितर देवस्य खाम्यो विक्रम कामी देवस्य
इच्छामि कुमारसो वन्दे उत्तमं शाकर्ण सन्धि सपकर्माणलेषु इच्छामि कुमारसो वन्दे उत्तमं इच्छारि भगवान पसाय गई वायना प्रसाद कनावसोदी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं एषो पंचदमुक्कारो सर्वपावपणसणो मंगलाणं सर्वे सिंहडमं गवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः अंगु श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे सब एक साथ ओम नमो जिज्ञानम शरणानम मंगलानम नुगुतमानम रामे रूपे रोगः अस्या उषा कैटोकललामभूताय शुक्रोगर्भशनाय हरहति नमः स्वाहा एक साथ ओम नमो जिज्ञानम शरणानम मंगलानम नुगुतमानम रामे रूपे रोगः अस्या उषा कैटोकललामभूताय शुक्रोगर्भशनाय हरहति नमः स्वाहा ओम नमो जिज्ञानम शरणानम मंगलानम नुगुतमानम रामे रूपे रोगः अस्या उषा कैटोकललामभूताय शुक्रोगर्भशनाय हरहति नमः साथ में शिव परमात्मा शंखेश्वर प्रभु को प्रार्थना करने की होती है। कईयों को आती है, कईयों को नहीं आती है। आज के इस कार्यक्रम के बाद आप सभी को एक कार्ड दिया जाएगा, इसमें ये स्तुति छपी हुई है। आप उससे कंठस्थ कर लो और सुबह मंदिर जाते हो, अभिषेक करते हो, उस समय भी यह स्तुति बोली जाती है। और जब भी कोई गुरु महाराज के साथ विहार करो, करने के पहले यह स्तुति बोल के बाद में स्टार्ट करेंगे तो अपना विहार निश्चिंत निर्भय हो सकता है। यहाँ से गाते हैं, आपको आती है तो बोलना, नहीं तो ध्यान से सुनो। नाथ मारे कान धार जो विहार करता श्रवण श्रमणी विघ्न नाटार जो मंगल धाये श्री संगनु आशीष एवा आप जो मंगल धाये श्री संगनु आशीष एवा आप जो हे नाथ शंखेश्वर प्रभु कवि करुणाए विभाग जो हे नाथ शंखेश्वर प्रभु कवि
आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सबके हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को कोटि कोटि वंदन। हर तरफ हो रोशनी, मुझको ज्ञान ऐसा चाहिए, बुझे दीपक जल उठे, मुझको राग ऐसा चाहिए। एक शब्द में सागर समेटूं, एक पंक्ति में ब्रह्मांड हो। एक शब्द में सागर समेटूं, एक पंक्ति में ब्रह्मांड हो। महाबोधि सुरेश्वर जी जिस पाठ पर विराजमान हो, जिनकी वाणी का चमत्कार हम सबने देखा है, ऐसे महामानव के लिए अगर जोरदार तालियां हो जाए और भला क्या चाहिए, और भला क्या चाहिए। और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए होनी चाहिए कि इतने सालों से जिन्होंने साहिब जी का साथ दिया है। जहां तक मैं साहिब जी की बात करूं, इसके पहले भी साहिब जी को हम मिल चुके हैं, इनको सुन चुके हैं, इनके बारे में सुन चुके हैं। धर्म के शिखर पुरुष, कर्मवाद के अनंत प्रणेता आचार्य भगवंत श्री बोधि सुरेश्वर जी को कोटि कोटि नमन। और सबसे बड़ी बात यह है, कल साहिब जी ने प्रवचन दिया था जैन मंदिर में। कुछ लोग शायद आप हाजिर होंगे, अधिकतर लोग आप नहीं होंगे। एक बात मैंने साहिब जी के बारे में वहां भी कही थी, फिर कहना चाहूंगा मैं कि हर गुरु भगवंत हमें धर्म करने की प्रेरणा देता है। पूजा करना, प्रतिक्रमण करना, मंदिर जाना, देव दर्शन, ये सारी धार्मिक क्रियाएं हैं। लेकिन साहिब जी ने हमेशा एक बात खास कही है कि ये सारी क्रियाएं आपकी व्यक्तिगत क्रियाएं हैं। साहिब जी ने एक बात खास कही है हम सबको कि यदि आप माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, यदि आप गुरु भगवंतों की सेवा नहीं करते हो, यदि आप समाज की सेवा नहीं करते हो, तो आपकी ये सारी धार्मिक क्रियाएं गौण हो जाएगी। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, उनके लिए अगर आप कुछ नहीं करते हो, और जिस माँ बाप के कारण इस दुनिया में आप आए हो, जिनके कारण आपने ये दुनिया देखी है, धर्म देखा है, जिन शासन देखा है, गुरु भगवान देखे हैं, जो कुछ भी देखा है उस माँ बाप के कारण देखा है। और साहिब जी का ये स्पष्ट मानना है कि यदि आप माँ बाप की सेवा में कहीं कमी रखते हो, तो आपकी सारी धार्मिक क्रियाएं बेमानी हो जाएगी। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे महानायक, ऐसे जननायक, और हम सब सौभाग्यशाली है, चंबूर वाले खास करके, कि 1962 में धर्म सुरेश्वर जी आचार्य भगवंत ने यहाँ पर धर्म की ज्योत जलाई थी, क्रांति का शंखनाद किया था, धार्मिक और आध्यात्मिक क्रांति का एक नया हमें बीज दिया था। और उसी बीज को आगे बढ़ाते हुए आज इतने साल हो गए हैं, और आज हम पुनः सौभाग्यशाली है कि एक ऐसा महामानव, एक ऐसा महानायक जिसने हमारी चेतना के केंद्र बिंदु खोल दिए हैं, जिसने हमें ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर जीवन जीना कैसे है और जीवन जीना किसके लिए है। और हम सब सौभाग्यशाली है कि हमें आज साहिब जी साक्षात सुनने को मिल रहे हैं। जब भी आप इनको सुनते हो, आपने महसूस किया होगा, आपके मन में एक उद्वेग, एक चेतना होती होगी, नहीं मुझे अभी कल से ये काम नहीं करना है, नहीं मैंने ये गलत काम किया, मैं कल से ये काम नहीं करूँगा। तो जो महामानव आपको जीवन जीने की शिक्षा देता हो, जो महामानव आपको जीवन जीने की कला सिखाता हो, कैसे जीवन जीना ये सिखाता हो, मैं चाहता हूँ कि ऐसे महामानव, और एक बात है, भगवान भी यह विशिष्ट गुण बहुत कम लोगों में देता है। भगवान ने इनमें ऐसा कुछ दिया है कि जिनके कारण आज हम सब लाभान्वित है। साहिब जी के लिए मैंने खास 4 पंक्तियां लिखी थी। आप में अधिकतर लोग नहीं होंगे, मैं वो 4 पंक्तियां पुनः आपको बोलना चाहूंगा कि साधना के सर्वोच्च शिखर को शत शत वंदन करते हैं, साधना के सर्वोच्च शिखर को शत शत वंदन करते हैं, प्रज्ञा के विशाल समंदर को शत शत वंदन करते हैं। सूरज का तेज, चांदी सी शीतलता, सूरज का तेज, चांदी सी शीतलता होती है जहां पर मूर्तिमान। ऐसे युग दिवाकर, ऐसे युग दृष्टा महाबोधि सुरेश्वर जी को शत शत वंदन करते हैं। दिल में जब भावनाएं उमड़ती है तो सोचता है ये कहूं वो कहूं, पर क्या क्या कहूं समझ में नहीं आता है। पुनः मैं हम 4 पंक्तियों के लिए जो मैंने खास साहिब जी के लिए कही है कि हर जैनी ने बनाया जिनको अपने मुकुट का ताज है,
हर जैनी ने बनाया जिनको अपने मुकुट का ताज है, जिन शासन के हर संगीत के सुरों के जो बेशकीमती साज है। हर जैनी ने बनाया जिनको अपने मुकुट का ताज है, जिन शासन के हर संगीत के सुरों के जो बेशकीमती साज है। सरस्वती को भी अपने जिस बेटे पर अभिमान है, सरस्वती को भी अपने जिस बेटे पर अभिमान है, भारत भर में विहार ग्रुप महानायक के रूप में पाई जिन्होंने पहचान है। भारत भर में विहार ग्रुप महानायक के रूप में पाई जिन्होंने पहचान है। महाबोधि सुरीश्वर जी जैसे आचार्य भगवंत, महाबोधि सुरीश्वर जी जैसे आचार्य भगवंत, आप पर गर्वित, अति गर्वित पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है। दोस्तों, समय की अपनी सीमा है। अगर साहिब जी के लिए सच में मुझे कहा जाए, मैं घंटों बोल सकता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साहिब जी क्या है, इनके अंदर क्या है। इनका एकमात्र यही इनका लक्ष्य है कि आप धर्म को समझो, धर्म को जियो। केवल धार्मिक क्रियाएं करके जीवन को सफल मत समझो। धार्मिक क्रियाएं आपको धर्म तक ले जाएगी, धार्मिक क्रियाएं अपने आप में धर्म नहीं है। इसलिए साहिब जी का खास कहना है कि आप धर्म को समझो, धर्म को जियो, तभी आपका जीवन सफल होगा। लोग कहते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, हम लोग महावीर को पूजते हैं, महावीर को मानते हैं, पर महावीर की नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी ये होती है कि हम महावीर की पूजा करते हैं, महावीर को मानते हैं, पर हमारी तकलीफ क्या होती है, हम महावीर की नहीं मानते हैं। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे कि महावीर कौन थे, वो तीर्थंकर क्यों बन सके, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे साहिब जी की ओर से ईमानदारी से एक ही कहना चाहूँगा कि जो साहिब जी का सपना है जैन समाज के लिए, जैन शासन के लिए, हम सब अगर साहिब जी के उस सपने को साकार कर सकें तो शायद मैं मानूंगा कि साहिब जी का यहाँ आना हम सब के लिए सफल होगा। तो क्या आप जोरदार ताली बजा के इस बात का प्रमाण देंगे कि वास्तव में हम तैयार हैं इसके लिए? दूसरी बात, जो मेरे सामने बैठे हैं सब कैप्टन्स, लीडर्स, पिछले 11 साल से यह विहार ग्रुप बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। और मैं तो कहूँ, इससे बड़ी क्रांति और क्या हो सकती है। सचमुच विहार ग्रुप की हमें कितनी ज़रूरत थी। मतलब विहार ग्रुप की स्थापना हुई, साहिब जी ने इसको आगे बढ़ाया और आप सब कैप्टन्स ने जवाबदारी समझते हुए उस काम को अंजाम दिया। आज सोचिए, जो इंसान संसार छोड़ के संयम की दीक्षा लेता है, क्या उसके प्रति इस समाज का कोई फर्ज नहीं है? तो आज ये विहार ग्रुप की स्थापना करके और इस विहार ग्रुप के प्रति अपना दायित्व पूरा करके हम सब इस जिन शासन के प्रति, इन साधु भगवंतों के प्रति अपनी एक चेतना का एक निर्वहन कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको, और आपके अलावा जो लोग नहीं भी आए होंगे वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि विहार ग्रुप मतलब केवल ऐसा नहीं कि चैम्बूर से मलाड छोड़ दिया, उतना ही नहीं होता है। जब आप चैम्बूर से मलाड जाते हो या चैम्बूर से घाटकोपर जाते हो तो केवल आप जाते ही नहीं हो, उन भगवंतों के आपको साथ मिलता है, उनकी निष्ठा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। वो आपसे बात करते हैं, वो ज्ञान की बात करते हैं, कुछ सिखाते हैं और आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। और आप में से बहुत तकलीफ देखी होगी, कोई साधु भगवंत या गुरु भगवंत शायद तकलीफ होगी, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था आपने की होगी, व्हील चेयर चलाई होगी, बहुत कुछ किया होगा। अब जिस पल का आप सब इंतजार कर रहे थे साहिब जी के बुक से कुछ सुनने का, साहिब जी प्रवचन देंगे और कुछ प्रक्रियाएं हमारी बाकी है सम्मान की। साहिब जी के प्रवचन के बाद में वो प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। तब तक हम साहिब जी के इस प्रवचन का आनंद लेंगे और अध्यात्म की नगरी में डूब जाएंगे। स्कूल में बच्चे भी गांव के थे और एक दिन स्कूल में मैसेज आया प्रिंसिपल के ऊपर कि कल आपकी स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए एक इंस्पेक्टर साहब आ। आपको पता होगा, आप स्कूल में पढ़ते होगे तो इंस्पेक्शन करने के लिए अचानक आया। प्रिंसिपल ने नोटिस दे दी हर टीचर को, टीचर ने नोटिस दे दी हर स्टूडेंट को, कल अच्छी तरह से आना, कल बड़े इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तुम्हारा जनरल नॉलेज भी पावरफुल होना चाहिए। जैसे कल नरेश भाई ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, अच्छी तरह से आ जाना, आप भी एकदम येलो 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 में समा। दूसरा दिन टीचर आ गए, स्टूडेंट आ गए,
एक पीरियड पूरा हुआ, इंस्पेक्टर पधारा। मोटर कार के अंदर पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, चाय पानी नाश्ता हुआ। उसके बाद प्रिंसिपल साहब को इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आपकी स्कूल में मैं जा सकता हूँ, आपके बच्चों को कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ? जरूर, हमारे स्कूल, हमारे टीचर, हमारे बच्चे एकदम पावरफुल, कोई भी प्रश्न पूछो आंसर मिल जाएगा। और 7वीं कक्षा के बच्चों के क्लास में इंस्पेक्टर साहब ने प्रवेश किया। टीचर खड़े, स्टूडेंट खड़े, गुड मॉर्निंग सर वगैरह हो चुका। और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने टीचर को कहा, अब मैं प्रश्न पूछूं? जरूर पूछिए। और एक बच्चे को पूछा, स्टैंड अप। बच्चा खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा, शिव का धनुष्य किसने तोड़ा? दैट मीन्स शिव धनुष्य किसने तोड़ा? और उस बच्चा हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, सर मैंने तो नहीं तोड़ा। इंस्पेक्टर साहब को लगा कि ये कुछ समझ नहीं सका है मेरा प्रश्न, तू बैठ जा। दूसरे को खड़ा किया, दूसरे को पूछा वही का वही प्रश्न, शिव धनुष्य किसने तोड़ा? और वो बड़ा बोलने में पावरफुल। उसने कहा, क्या कमाल है सर, उसने मना कर दिया इसलिए मुझे पकड़ रहे हो क्या? अब इंस्पेक्टर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सर के सामने देखा। सर ने कहा, टीचर ने कहा, सॉरी, हमारे बच्चे एक नोट का पन्ना भी नहीं फाड़ते तो शिव का धनुष्य कहाँ से तोड़े? अब ये हैरान हो गए, सीधे बाहर निकल गए ऑफिस के अंदर, कहीं आगे जाना ही नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, इतने जल्दी आ गए, अभी गए अभी वापस लौट गए, ये क्या है? अरे क्या क्या है, तुम्हारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है? हो नहीं सकता है सर। क्या पूछा? मैंने पूछा शिव का धनुष्य किसने तोड़ा? एक कहता है मैंने नहीं तोड़ा, दूसरा कहता है वो नहीं मिला तो मुझे पकड़ रहे हो, और तुम्हारे सर वो भी कहते हैं बच्चे पेट नहीं फाड़ सकते तो वो धनुष्य कहाँ से? अच्छा बैठिए, आप बैठिए। और प्रिंसिपल जी खुद खड़े हुए, ऑफिस में जितनी फाइल थी 2025 की सारी निकाली, खोल के देखी। सर माफ करना, हम धनुष्य लाए ही नहीं है तो तोड़ने की बात स्कूल के ट्रस्टी भी थे। इंस्पेक्टर साहब ने ट्रस्टियों से बात की फोन से, जल्दी आइए, मुझे अर्जेंट मीटिंग करनी है। इस होटल के अंदर हम इकट्ठे होते हैं, ये यहाँ से कार में निकले, वो वहां से आए, अंदर बैठे। सर सब ट्रस्टी घबरा रहे हैं, क्या हुआ? अचानक अपने स्कूल के बारे में कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा? और उन्होंने पूछा क्या? अरे क्या क्या क्या? मैंने इसको पूछा तो ऐसा आंसर, दूसरे को बोला, अरे चलो बच्चे को छोड़ो, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे प्रिंसिपल मुझे यूं कहते हैं हम धनुष्य लाए ही नहीं है तो तोड़ने की बात। अच्छा अच्छा, आप बैठिए, हमको जरा मीटिंग करने दो। 4 ट्रस्टी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर गए, चारों ने मीटिंग की और वापस आए। देखिए सर, जो हो गया हो गया, अब धनुष का खर्चा कितना हुआ? हंस कर के छोड़ मत देना, ऊपर से नीचे तक यही चल रहा। अज्ञान, बच्चा भी अज्ञानी, पढ़ाने वाला भी अज्ञानी, समझाने वाला भी अज्ञानी, और संभालने वाले भी अज्ञानी। पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर यही परंपरा चलती। जो सीखना था वो नहीं सीखे, नहीं सीखना था सब सीखे। रामायण से कुछ नहीं सीखे, धुरंधर से सब कुछ सीखे। रामायण ने आपको सिखाया था कि 2 भाई के बीच समाधान होना चाहिए, सिखाया सिखाया। भरत को आगे करके राम पीछे चले गए, छोटे को आगे करो, बड़े को पीछे होना चाहिए, ये रामायण ने सिखाया है। सीता और उर्मिला के बीच, यानी कि देवरानी और जेठानी के बीच क्या प्यार होना चाहिए। उर्मिला तू यहाँ रहे, मैं जाऊंगी रामचंद्र जी के साथ, तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ माँ बाप को संभाल। ये दो देवरानी जेठानी नहीं थी, सगी बहन से भी।
याद रखना, विहार सेवा की तो बात मैं बाद में करूंगा। चेंबूर बार बार आना होता नहीं। कल आई थी सारी महिलाएं, सामायिक मंडल वाली, वंदना करके कहा महाराज साहब एक चौमासा करो ना। मैंने कहा किसके लिए? बहनों के लिए? तो बहनों के लिए नहीं, मैं भाइयों के लिए। हाँ तो भाइयों के लिए। मैंने कहा कहाँ है तुम्हारे श्रावक? तो कोई आते ही नहीं है। महाराज साहब रहो 2 दिन। मैंने कहा वो तो सोए हुए हैं। अरे उन्होंने कहा 2 दिन के बाद उठे। मैंने कहा ये तो कुंभकर्ण के भाई है, 6 महीने के बाद भी नहीं उठे। चौमासा प्रवेश कराएंगे, बिठाएंगे, अतः गणपति बापा पुढच्या वर्षी सीधा पर्यूषण में देखेंगे, और पर्यूषण के बाद चातुर्मास परिवर्तन में अतः गणपति गेले चैन पड़े ना। ये तो तुम्हारी हालत है। चेंबूर को आज से नहीं पहचानता हूं, 50 साल से पहचान। दीक्षा के पहले भी मैं आया था। इन्होंने 1962 की बात की, मेरा जन्म भी 1962 का ही है। चेंबूर का जन्म और मेरा जन्म दोनों एक साथ में है। मैं यहां तक पहुंचा, चेंबूर वहां ही गंवा रहा। चेंबूर में सबसे बड़ा काम किया तो विहार सेवा कमाल। जहां पर साधु साध्वी का आवागमन नहीं है, आते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कब आए कब गए, और चौमासा होता है तो भी आपको पता नहीं रहता है कौन से महाराष्ट्र में क्या चलता है, कुछ नहीं। और ऐसे क्षेत्र में आज विहार सेवा को 10-10 साल से चलाना ये कोई कम बात नहीं है। हमारे नरेश जी के लिए आपको ताली बजाना। जो काम एक साधु नहीं कर सका है वो काम एक श्रावक ने किया है। चेंबूर में विहार सेवा कोई मानेगा? कोई आते नहीं है। तब भी आप 125 लोग, चलो विहार सेवक तैयार हो गए, विहार सेविकाएं नहीं। इतनी जबरदस्त बड़ी संख्या में साध्वी जी को लेना छोड़ना, व्हीलचेयर चलाना, ये कोई कम बात नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं। जहां पर चौमासा होता है, शेष काल में भी आना जाना रहता है, वहां पर विहार सेवा करना आसान बात है। वानखेड़े स्टेडियम में 6 लगाना आसान है। रोहित शर्मा ने लगाई नहीं, सैमसंग ने लगाई थी ना। वानखेड़े है, यूं कट मारो वहां 6 आ जाएगी। जरा जाइए अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाइए, पता चले 6 कैसे लगती है। चेंबूर यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, या 6 मारना मेरे बस की भी बात नहीं है। तब जाकर आप लोगों की यह सेवा चलती है। स्थापना तो कर दी, चलाना आगे बढ़ाना ये भी कुछ कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन सेवक सेविकाओं से। फिर से मैं कहता हूँ, जीवन में हर जगह अज्ञान, हमारे जीवन में संघर्ष क्यों होते हैं? छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वाई? क्योंकि आपका बिहेवियर में चेंज आता है। याद रखना, घटना एक ही होती है, बिहेवियर अलग अलग होते हैं। किसी का बिहेवियर संघर्ष खड़ा करता है, किसी का बिहेवियर समाधान खड़ा करता है, और किसी का बिहेवियर समझ पैदा करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। बाप जब मरने पड़ा था, 3 बेटे थे, तीनों बेटे को इकट्ठा करके कहा, बेटा मेरा अंत समय आ चुका है, मेरे पास 1 सियार है, मैं तीनों को देना चाहता। कितना देने का? 1 सियार 33 लाख, फिर बचेगा 1 लाख, ये नहीं छोड़ेगी। उसका 33,000, 33.33, हाँ 33,000 छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी। 33 लाख, 33,000 और 1 लाख 1,000 बचा 333। હવે રૂપિયો બચ્યો। हाँ तो तीनों भाई मिल करके वो रुपया भंडार में डाले। चलो आ रुपयो भगवान ने, એટલે कोई प्रॉब्लम नहीं। 33,33,333। अब समझना, तीनों भाइयों को आप क्या मानते हो? ये बात बराबर है ना? तीनों को बराबर मिलना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता।
ये समाधान था, यानी कि 3 पॉइंट होते हैं, माइनस, न्यूट्रल, प्लस। माइनस उसे कहते हैं मुझे ज्यादा चाहिए 50 लाख, दोनों को 25-25 दो, पहले मुझे संभालो, या माइनस। न्यूट्रल 33.333, ये न्यूट्रल। प्लस किसको कहेंगे? पहले मेरे दोनों भाइयों को जितने चाहिए उतने दे दो, फिर जो बढ़े वो मुझे देना, ये प्लस। इसे कहते हैं समझ। 1 संघर्ष, 2 समाधान, 3 समझ। संघर्ष माइनस है, समाधान न्यूट्रल है, समझ में प्लस है। हाँ? एक माँ बाप के 2 बेटे होते गए, तब माँ बाप से दोनों बेटे जुदा होते। माँ बाप कहाँ जाएंगे? भाई ने बताया ना, माँ बाप कहाँ जाएंगे? जो यूं कहेंगे मैं नहीं संभालने वाला हूं, यह संघर्ष। जो यूं कहे 6 महीना तेरे यहाँ और 6 महीना समाधान, 12 महीने मैं माँ बाप को भगवान की तरह संभालूंगा, समझ। अंडरस्टूड? जीवन के हर क्षेत्र में ये 3 पॉइंट आपको उपयोगी बनेंगे। सिर्फ माँ बाप के बारे में नहीं, सिर्फ कैसे के बारे में नहीं, हर कोई क्षेत्र में समझ नंबर 1, समाधान नंबर 2 एंड संघर्ष नंबर 3 माइनस। जैसे ही बाप ने कहा तब छोटा बेटा खड़ा हो गया, नहीं पापा मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जैसा कहूं वैसा आपको भाग करना हो तो मैं बोलूं। बाप ने कहा कमाल है, मेरे लिए तो तीनों बेटे समान समान। कभी कभी किसी को लगता है, आपको नहीं तो आपकी बहू को, कि आपके पापा पार्शियलिटी करते हैं, मेरे देवर को अच्छा संभालते हैं, आपको नहीं। ऐसी बातें होती है। माँ बाप कभी पार्शियलिटी करते हैं। हाँ, 2 आंख कैसी होती है? कैसी होती है? समान समान होती है ना। कोई ऐसा कहेगा कि तेरी एक आंख मुझे दे दे, 5 लाख रुपया दूंगा, कौन सी आंख देंगे? कौन सी? एक भी नहीं। क्यों? दोनों के प्रति आपका समान प्यार है। माँ बाप के 2 बेटे हुए, दोनों के प्रति समान प्यार। मत चढ़ाओ, मत भड़काओ। इन्हें संभालते, आपको नहीं संभालते, इनको देते, आपको नहीं देते, आप पूरे दिन काम करते हो, वो तो कुछ नहीं करता है, ऐसा भड़काने का काम मत करो। माँ बाप के लिए सब समान। पता है, पहले घर में, सॉरी शरीर में आंख पहले आती है कि चश्मा पहले आता है? चश्मिश को पूछता हूँ, पहले चश्मा आया कि पहले आंख आई? आंख, चश्मा बाद में आया। बराबर, मुझे भी बात। अब मुझे ये आंसर दीजिए, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे चश्मा के नंबर बदल चुके हैं, और आपके चश्मे, आपके ग्लास जापान के हैं, आपकी फ्रेम कोरिया की है, उसमें आपने अमेरिकन डायमंड्स लगाए हैं। आप कहोगे ये तो मैं नहीं बदलूंगा, बदलना हो तो मेरी आंख को बदल दो, लेकिन चश्मा नहीं बदलूंगा। ऐसा कभी कहते हो? 3 लाख की फ्रेम होगी तो भी बदल दोगे? गोल्डन फ्रेम होती है ना, बदल देंगे कि नहीं बदलेंगे? आंख बदलेंगे? नहीं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, घर में आप पहले आए कि सासू जी पहले आए? सासू जी। तो सासू जी पहले आए, आप बाद में आए। सासू जी आपकी जगह, और आप अब बदलना है तो किसको बदलेंगे? समझ गए? हाँ बोलती है, हम बदल जाएंगे, वो नहीं बदलेगी, हमें ही बदलना पड़ेगा। संघर्ष। क्या सब जगह हमें ही सहन करने का, तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं? ये संघर्ष। आधा आपके यहाँ, आधा मेरे यहाँ। समाधान, भगवान की तरह उन्हें मैं संभालू, समझ।
सबसे ज्यादा अभाव आज समझ का है। शिव धनुष्य का ज्ञान हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ नहीं होगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगी। और इसी समझ को पाने के लिए देव, गुरु और धर्म है। लेकिन देव और गुरु में भी फर्क यहाँ पड़ जाता है। देव बोलते नहीं है, गुरु बोलते हैं तो गुरु के पास जाते नहीं। सच बताए, मंदिर में ज्यादा जाते हो कि गुरु महाराज के पास? क्योंकि भगवान कभी हाथ नहीं पकड़े। महाबोधि महाराज के पास जाएंगे, पकड़े क्यों भाई, विहार करता है कि नहीं करता है, रात को खाता है, कंदमूल खाता है, जमीन कंद खाता है, भक्ष खाता है, आइसक्रीम खाता है, यहाँ जाता है, फिल्म जोता है, देखता है। हर तरह के प्रश्न आएंगे, महाराज से तो बाधा बाधा बाधा। इससे अच्छा है कि मैं ही बाधा ले लूं कि कभी कोई गुरु महाराज के पास। एक विहार सेवा ने क्या किया, बहुत सारे गुरु महाराज का परिचय करवाया। हुआ कि नहीं? आपने कभी गुरु महाराज का नाम, क्या समुदाय का नाम भी आपको पता नहीं था। आज आप कोई गुरु महाराज के साथ जाते हो, आपके इसमें आता है ना कि इस गुरु महाराज के साथ आपको जाना है, कम से नहीं आता है। ओके, महाराज साहब के साथ जाते तो हो, तो आप पूछ तो सकते हो ना, महाराज साहब आपका नाम, उनके चेले को पूछ सकते हो, बड़े महाराज का नाम, आचार्य का नाम। तो ये कुछ तो नॉलेज मिला कि नहीं मिला। और हमारे साध्वी जी कभी भी इतने करुणावंत होते हैं, उन्हें लगता है कि एक को भी मुझे संसार में नहीं रखना है, सबको मोक्ष में पहुंचा देना है। बोलो, मंदिर जाते हो? चलो लो हाथ जोड़ो, मंदिर जाना। आप बोलोगे हाँ तो पूजा करते हो? नहीं, चलो पूजा करो। मेरे जैसा ज्यादा नियम नहीं देता है, लेकिन ये लोग नियम के बिना आपको छोड़ते भी नहीं है, हमारा काम वो पूरा कर देते हैं। तो ये समझ कहां से आए? देव उससे भी ज्यादा जीवंत गुरु, गुरु यानी जीवंत परमात्मा। देव बोलते नहीं है ना, गुरु तो बोलते हैं ना, इसलिए कह रहा गुरु वो जीवंत परमात्मा है। गुरु के पास जाइए, गुरु के साथ चलिए, गुरु की ओरा में रहिए, गुरु के उपनिषद में रहिए, कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। मैंने देखा है आज तक बहुत सारे, यहाँ पे देखिए भैया प्रवचन यहाँ चल रहा है, आज तक महिलाएं रहेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसीलिए मैं बड़े सम्मेलन में कभी बुलाता हूँ, आप लोग आते हो कि नहीं आते? इसीलिए नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि उन्हें बिठाने में, उन्हें समझाने में, संभालने में आधा टाइम अपना चला गया। वो शांत रहेगी तो उसका मोबाइल बोलेगा। ओके, तो गुरु क्या करते हैं? गुरु के साथ रहने से, गुरु के सत्संग में रहने से क्या फायदा होता है? हाँ, वो कुछ भी नहीं बोले ना तो भी आपको कुछ न कुछ इफेक्ट जरूर से। पहले के महापुरुष ऐसे थे कि वो जब जंगल में जाके बैठते, यहाँ पे सिंह आकर के बैठता था, यहाँ पे बकरी आकर के बैठती थी। बकरी डरती नहीं थी और सिंह उसके ऊपर घुर्राता नहीं था। ये किसका प्रभाव था? बकरी का प्रभाव। बकरी क्या शेर बन गई? नहीं, बीच में कौन बैठे थे? अभिनवपद की ओली गई, बराबर। देव और गुरु और धर्म की आराधना की आपने, हरियन सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु और दर्शन ज्ञान चाहिए तब धर्म। अब बताइए, देव गुरु धर्म में बीच में कौन बैठे? गुरु। देव आगे, धर्म पीछे, बीच में कौन है? गुरु। याद रखना, जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वो किससे आएगा? गुरु से ही आएगा। और गुरु के साथ रहने का बेस्ट टाइम कौन सी है? वॉक भी कर सकते हैं, विहार भी कर सकते हैं। वॉक में केंद्र के अंदर शरीर है और विहार के केंद्र में कौन है? गुरु महाराज। शरीर के ऊपर राग करेंगे, दुर्गति में जाएंगे, गुरु के ऊपर प्रेम करेंगे, सदगति रिजर्व हो जाएगी। आज जब चारों ओर सुरक्षा बहुत जरूरी हो चुकी है, रास्ते वही के वही है, ऊपर से उसी रास्ते में खड्डे खोद दे करके वो रास्ते को और भी छोटे बनाए,
और गुरु महाराज को उन्हीं के ऊपर से चलना है। साथ में व्हीकल्स तो रोज के रोज बढ़ते ही जाते, कम होते कोई देखते नहीं है। कितने साल पुराने तुम्हारे व्हीकल्स है, जो आते वो चलाते हैं। एक और रास्ते छोटे हो गए, दूसरी और व्हीकल्स बढ़ गए, तो साधु साध्वी चलेंगे कैसे? उन्हें चलाने के लिए आप जैसे विहार सेवक और विहार सेविका, मैं तो दावा के साथ कहता हूँ, बंबई के अंदर यदि विहार सेवक सेविका नहीं होगी तो कहीं न कहीं महाराज साहब का एक्सीडेंट होगा होगा होगा। टू व्हीलर, हाँ, यहाँ पे लाइन लगी होगी तो बीच में से टू व्हीलर निकलेगा। अब महाराज साहब को पता नहीं है, पीछे ऐसा वो यूं गए, टू व्हीलर धक्का मार देगा, कहीं महाराज गिरेंगे, कहीं सेवक गिरेगा, कुछ न कुछ हादसा हो सकता है। लेकिन हमारे विहार सेवक बिल्कुल रोड के ऊपर यूं खड़े होंगे। ताकत है, टू व्हीलर वाला आगे जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो सबसे बड़ी समझ ये है कि जिस मार्ग पर हम नहीं चल सकते, हाँ, साधु साध्वी जी भगवान की आज्ञा के मार्ग पर चलते हैं। हम तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन उन्हें द्रव्य मार्ग के ऊपर तो चलाए। रोड के ऊपर चलाना माने द्रव्य मार्ग, और उससे फायदा क्या होगा? आप हमें द्रव्य मार्ग पर चलाते हो, हम आपको भाव मार्ग पर चढ़ा देंगे। कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन आएगा। वो भाव मार्ग के ऊपर आप चढ़ गए, माने क्रिया छोटी, हाँ, लेकिन उसका मुनाफा बहुत बड़ा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 1 घंटा विहार करते हैं, लेकिन 23 घंटे का चार्जिंग होता है कि नहीं होता है? 23 घंटे का चार्जिंग हो जाता है। मजा आ गया, बार बार याद आती है। आज हम ऐसे गए, आज मैं यूं गई, और जितने भी फोन आएंगे, आज मैं विहार में गया था, आज वो विहार में गई थी, घणो मजो आयो। चलता है कि नहीं चलता है? दिन के अंदर ये शुभ भाव, ये शुभ परिणाम आपको अशुभ भाव से दूर रखते हैं। तो ये समझ होनी चाहिए। याद रखना, समझ क्या कहती है? एक और भगवान की पूजा है और दूसरी ओर गुरु महाराज का विहार है। व्हाट आर यू डूइंग? पूजा छूट गई तो आपका तो नियम है ना पूजा। अब 10 बजे कोई मिलेगा दूसरा साथी, क्यों भाई तिलक नहीं दिखता है, पूजा नहीं की? अरे आज क्या करे, अचानक नरेश भाई का फोन आया, कोई नहीं है, तू जा। यूं रोते रोते नहीं बोलने का, आज मेरी पूजा रह गई। चिल्ला के बोलने का, जोर से बोलने का, बाहुबली की तरफ बोलने का। आज की पूजा डबल पूजा, आज की पूजा डबल। कैसे? भगवान की आज्ञा है कि कोई भी गुरु महाराज अकेले नहीं होने चाहिए। रोड के ऊपर हमें उन्हें सहाय करनी है, तो आज मैंने वो किया। तो भगवान की आज्ञा, वो भी भाव पूजा है, ये द्रव्य पूजा है। द्रव्य पूजा से ऊपर कौन सी है? भाव पूजा। इसका मतलब ये भी मत समझना कि जिस दिन विहार करो उस दिन पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं करेंगे तो कोई पूछेगा क्यों है, मन तो भाव से क्यों है, थारे बहुत पूजा करेंगे, कोई करजो मती। और तो एक काम वो है कि जटे तक आपने टाइम है तो हैंग करो, हवालू प्रतिक्रमण करो, समायिक करो, वती विहार में जाओ, वती आविन पूजा करो। कौन ना दे दियो? स्वामी उठवा में लेट हुआ, बावसीन छोड़वा में लेट हुआ, घरे आवता लेट हुआ, वती नाश्तो भी जो कीधो अतरा में तो थोड़ा टाइम वे गयो, कोई बात नहीं, दर्शन करो, रहो। हाँ बढ़ियो, ये समझ याद रखना। 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पूजा, नंबर 2 सेवा, नंबर 3 रक्षा। बोलिए, नंबर 1 दोपहर का रस डाइजेस्ट नहीं हुआ और शाम की तैयारी कर रहे। नंबर 1 पूजा, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब इसका डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाऊं। भगवान की जो करते हो इसे पूजा। मंदिर के अंदर कूड़ा कचरा पड़ा है, आपने झाड़ू लेकर के सफाई की, यह सेवा है। ओके, अंडरस्टूड? पूजा सेवा। अब
मंदिर ऐसी जगह पे है जहाँ पे विधर्मी लोग हैं और वो अपने मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आ रहे हैं, तब हम सब पूरा संघ मंदिर के आसपास इर्द गिर्द जो भी शस्त्र वगैरह लेकर के खड़े रह गए हैं, ताकत है तो आइए हमारे एक मंदिर का एक पत्थर कंकड़ भी नीचे गिरा के दिखाइए। ये जो भावना वो क्या है? रक्षा। बराबर। पूजा से ज्यादा फल सेवा है और सेवा से ज्यादा फल रक्षा। मंदिर बनाओ, उसका जीर्णोद्धार करो, 8 गुना पुण्य है, लेकिन उसको सुरक्षित रखो, हजारों गुना पुण्य। ठीक वैसे एक गुरु भगवंत को आप घर पधारे, गोचरी विराई, वो आपने उनकी पूजा कर। नंबर 2, वो बीमार पड़े, दवाइयाँ दिलवाई, डॉक्टर लेके आए, हॉस्पिटल में लेके गए, एक्सरे निकाला, रिपोर्ट्स निकाला, आप गए लेके आए, ये सब उनकी सेवा। लेकिन जो बिहार में चलते हैं, हाईवे है, बहुत सारे व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, ऐसे समय में हाथ में बेटल लेकर, मुंह में विसल लेकर के, टी शर्ट वगैरह पहन करके उनके साथ जब चलते हैं, वो क्या है? रक्षा। इसमें ज्यादा पुण्य हुआ रक्षा, हजारों लाखों गुना पुण्य। आप मानोगे कि महाराज साहब हम जब विहार के आज तक किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, तुम्हारी क्या भावना है? वही तो कहता हूं, तुम थे, आप थे, इसलिए एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो अच्छी बात है ना। प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट्सएप में क्या वायरल होता है? एक्सीडेंट होगा, वो वायरल होगा। आप सही सलामत छोड़ करके वापस आए तो कोई, अरे आज चेमूर वालों ने यहाँ से विहार करवा के महाराज साहब को घाटकोपर तक सुरक्षित पहुंचाया, ऐसा कोई व्हाट्सएप में वायरल होता ही नहीं। इसमें क्या बड़ी बात है? यस, इसी में बड़ी बात है। मे बी पॉसिबल, शक्य था, यदि आप नहीं थे तो एक्सीडेंट हो सकता। जरा आइए ना, वो घाटकोपर तिलक नगर के पास कितने रोड होते हैं, 4, 5, 6 रोड एक साथ हो जाते हैं ना। और जो उम्र लायक साधु होते, उम्र लायक साध्वी, यदि आप ना हो तो बेचारे हक्के बक्के रह जाते हैं, यहाँ देखो वहां देखो, यूं जाओ, और उसी में कभी एक्सीडेंट हो जाता। होते हैं कि नहीं होते? अपन जब छोटे थे तब अपन भी जाओ कि नहीं जाओ ऐसे करते थे ना। लेकिन जैसे जैसे समझ आई कि नहीं, ये सिग्नल देखने का, रेड सिग्नल होता है तब चलने का, ये सारी समझ है। और ये समझ सुरक्षा के अंदर हमें आगे बढ़ाती है। हमने समझ क्या मान ली, वो समाइक करो, वन में ज्यादा पुण्य, वो 2 घंटा पूजा करो, वन में ज्यादा पुण्य है, मैं प्रवचन सुनूं, वन में ज्यादा पुण्य है। नहीं, अकेले उसमें नहीं है। मैं साध्वी जी के साथ विहार में जाऊं, मैं साध्वी जी विहार करके आई, उन्हें घर बताऊं, उन्हें नौकार से विराऊं, ये उसमें से भी ज्यादा पुण्य है। शास्त्र में क्या लिखा है? जो विहार करके आते हैं उन साधु साध्वी का ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। जो नॉर्मल है यहाँ पर ही है, उनसे भी ज्यादा भक्ति किसकी करने की? जो आज विहार करके आए, जो छोटे है, बाल मुनि अभी आए थे ना 5 दिन पहले ओली जी में, छोटे छोटे, बॉर्न इंडिया में, बॉटअप लंदन। विश्व का एक भी कोना ऐसा नहीं है ये जो दोनों को दिखाया। उसकी माँ मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे कहा पूरा वर्ल्ड घुमाया है। बच्चों, दोनों ट्विंस 4 साल के हुए, गुरु महाराज के पास छोड़ दिया, 4 साल तक ट्रेनिंग ली और अभी भिवंडी में शिक्षा हुई और आपके यहाँ आके गए। आप गए थे कोई विहार में? कौन था उनके साथ विहार में? बहुत अच्छा। तो बाल मुनि होते हैं, उन्हें भी, उनकी भी भक्ति करनी चाहिए। विकलांग यानी बीमार होते हैं, उनकी भी भक्ति करनी चाहिए। जो वीक होते हैं उनकी भी भक्ति करनी चाहिए। जिन्होंने लोच करवाया उनकी भी भक्ति, जो उत्कृष्ट स्वाध्याय करते हैं उनकी भी भक्ति करनी चाहिए।
इसी तरह जो विहार करके आते हैं तब खड़ा रह जाना चाहिए। लाभ दीजिए महाराज साहब, 10 किलोमीटर दादर से आए हो, चेंबूर तक आए हो, 8-10 किलोमीटर तो हो जाते हैं कि नहीं, तो महाराज साहब लाभ दीजिए। तो साथ में रहना वो सुरक्षा है, भक्ति और सेवा से भी ऊपर सुरक्षा है। आप सब मिल करके जिस तरह सुरक्षा का कार्य करते हो, बहुत ही मैं प्रसन्न हूँ। और जब भी चेंबूर आता हूँ तो इसी के लिए ही आता, और मुझे पक्का भरोसा है कि नरेश जी को बोलूँगा कि मुझे चेंबूर का सम्मेलन करना है तो मुझे हाँ ही मिलेगी, ना कभी भी सुनने नहीं मिलेगी। आपको पता होगा 2 साल पहले भी आप फोन किया था, इसी जगह पे किया था, सुबह में किया था, जोर से किया था। आज आपका सदनसीब है, आपका थोड़ा समय वेस्ट हुआ होगा, लेकिन उसके सामने भारत भर के कैप्टन्स आए थे कि नहीं, राजस्थान से आए, MP से आए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए, बम्बई से आए, इतने सारे कैप्टन्स आए। आज इतने छोटे से हॉल में सब लोगों ने अच्छी तरह से बैठ के, कितना बजा, हमें 9 से निकले थे, 2:30 बजे तक कार्यक्रम चला और पूरा हॉल खचाखच भरा रहा था। और कितनी सारी बातें हो गई, अच्छी बातें हो गई। और यह सारा पुण्य, सारा लाभ, सारा श्रेय यदि किसी को जाएगा, किसको जाएगा? चेंबूर आदिश्वर विहार सेवा ग्रुप को जाएगा। उसके साथ आज एक ही सेशन में दोनों का काम निपटा के आपके लिए मैंने 1.5 घंटा रखा कि चलो दोपहर को पर्सनल, वो जनरल था, अब ये क्या है, पर्सनल भी नहीं, स्पेशल। हाँ, स्पेशल क्लास होता है ना, बस आज का जो है वो स्पेशल है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जीवन में विहार सेवा से तो जुड़े हो, अब धीरे धीरे अपने जीवन में कुछ इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि समय बहुत खराब आ रहा है। आज आप अमेरिका और ईरान को देख रहे हैं, लड़ते वो है और गैस के बाटले के लिए लाइन में खड़ा रहना आपको पड़ता है। लड़ते झगड़ते वो है और दिक्कत तो पूरे वर्ल्ड को हो रही है। आज दुबई की स्थिति क्या है, भागने लगे, आने लगे, 70% दुबई से इंडिया आ गए। आखिर में ज्ञानियों ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक माँ और दूसरी मातृभूमि, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ तो चलो अपने साथ है, मातृभूमि को तो हम छोड़ के आए ना। तगतगढ़, शिवगंज, पिंडवाड़ा, सिरोही, भाणेराव, सोनेराव, सादड़ी, कतरा गांव थी अटे आया ने हमें तो सोराओं ने पूछो नेनका सोरा ने, व्हाट इज योर नेटिव प्लेस? माय नेटिव प्लेस चेंबूर। उसको पता ही नहीं है मैं भाणेराव का हूँ कि सांडेराव का हूँ। मैं कहूँ राजस्थान में, आई डोंट नो, क्योंकि आप लेके ही नहीं जाते हो। हालांकि राजस्थानी तो थोड़ा सा भी अपने गांव के साथ नाता रखा, और गुजरातियों ने तो सब बेच करके बंबई आ गए। आता मुंबई कुणाची? आता बोला मुंबई कुणाची? आमची, आणि भांडी घासा तुमची। यह हालत कभी भी बदल सकती है। 2025 और 26 को छोड़ दो, 27 भारत के लिए भारी। आज हम दुनिया का तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, अमेरिका, रसिया, यूक्रेन, ये सब हम जो देख रहे हैं, कल कहीं ऐसा ना हो जाए पाकिस्तान हिंदुस्तान में भी पॉसिबल। पूरी दुनिया बढ़ जाएगी अमेरिका और रसिया के बीच, चाइना, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में आपकी आराधना आपको बचाएगी। निरंतर 3 बात याद में रखिए, ध्यान में रखिए। नंबर 1, हो सके तो हफ्ता में नहीं तो महीने में 1 IMB हर घर में होना चाहिए। वंस इन अ मंथ, वीक हो तो बेस्ट, कम से कम मंथ।
महीने में एक आयम्बीन हर घर में। नंबर टू परमात्मा की पूजा एवरी डे। भगवान की पूजा करके प्रार्थना करो कि पूरी दुनिया हिंसा युद्ध से मुक्त हो। और नंबर 3, रात को सोने के पहले अनुपमा देखते हैं, IPL देखते हैं, वो सब बंद करो। उसके सामने पूरा घर इकट्ठा हो जाए, दादा दादी, मम्मी पापा, छोटा गुड़िया गुड्डा, सबको इकट्ठे करो और 5 मिनट के लिए आंखें मूंद करके अभी मैं बोलूंगा, नमो जिनाणं जिया भयाणं, 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 नमो जिनाणं जिया भयाणं। इस तरह 5 मिनट पूरा परिवार मिलकर जाप करेंगे। इसका बल होता है। इस सामूहिक जाप के प्रभाव से आने वाली आपत्तियां दूर हो सकती है। इसलिए यहाँ चेंबूर के सारे विहार सेवा ग्रुप के सदस्य अपने अपने घर में परिवार के साथ इतना काम शुरू कर दे। मैं 3 बात जो बताई उसमें उसे ऐसा समझिए, प्रभु भक्तिनो खप, आंबेलनो तप और नमो जिनाणं जिया भयाणं नो जप। बस ये जप, तप और खप, ये त्रिपदी के द्वारा आप सब अपनी आत्मा की भी सुरक्षा करो। और एक बात समझिए, आप गुरु महाराज की सुरक्षा करते हो, आपकी सुरक्षा रिजर्व, आपकी समाधि रिजर्व और आपकी सदगति भी रिजर्व हो जाती है। क्योंकि ऐसा पुण्य है, यहाँ कोई स्वार्थ है? कोई गुरु महाराज के साथ जाते हो इसमें कोई स्वार्थ है कि चलो ये गुरु महाराज के साथ जाएंगे तो 1 तोला सोना मिलेगा? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। बस निस्वार्थ भाव से जाते हैं, अपने गुरु महाराज है, हम छोड़ने को जाएंगे। एक समय था दुनिया दूसरे धर्म के गुरुओं की बात करती थी। देखो वहां पर कैसा है, वहां के लोग कैसे अपने गुरु का सम्मान करते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया मुंह में उंगली डाल चुकी है कि क्या जैनों के श्रावक और श्राविका का, विहार सेवक और सेविका का समर्पण भाव है। अपने गुरु महाराज कभी भी रोड के ऊपर अकेले नहीं दिखते हैं। करोड़पति लोग अपना घर, अपनी दुकान, अपना परिवार और अपना व्हीकल छोड़कर अपने गुरु महाराज के साथ चलते हैं। इससे बड़ा बहुमान और क्या हो सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चेंबूर विहार सेवा ग्रुप को। जिस तरह से आपकी प्रगति जारी है उसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। परिवार यानी कि विहार सेवा ग्रुप के सदस्यों को भी बढ़ाते रहिए। एक अंतिम जाहिरात, आप सबके पुण्य के प्रभाव से इस बार का सम्मेलन, वैसे तो मैं बोरीवली हूँ, बहुत दूर था, लेकिन आपका प्यार यहाँ तक खींच लाया है। इस बार का सम्मेलन कहाँ पे होगा? घाटकोपर। घाटकोपर तो नियर है, नियर। नंबर 2, 4 तारीख की जगह कब होगा? 2 अक्टूबर, फ्राइडे। बच्चों को छुट्टी है ना?
बस बच्चों को छुट्टी है। और फ्राइडे है भादरवावदी साकम, यानी पर्युषण के 12 दिन के बाद 13 दिन के बाद यहाँ पे आचार्य भगवान रत्न सुंदर सूरी महाराज की निसरा में रहेगा। और साथ साथ पूरे भारत में जो फैला हुआ ग्रुप है जिसका नाम है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके मुख्य संचालक कौन है? मोहन भागवत। और वो भागवत जी खुद हमारे सम्मेलन में पधार रहे हैं। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी से भी ऊपर भागवत जी आए, मानो मोदी जी भी आ गए और अमित जी भी आ गए। क्योंकि मोदी जी भी राय लेनी है तो किसकी लेते हैं? भागवत जी की लेते हैं। अभी 18 जनवरी को जब एक छोटा सा मिलन हुआ था, आए थे आप में से? आए थे, वेरी गुड। तो आपने देखा भागवत जी को, आपने सुना, कैसा लगा? प्रभावी वक्तव्य था। तो वो खुद 3-3.5 घंटे अपने सम्मेलन में सुबह 9 से 12 तक बैठने वाले हैं। आचार्य भगवान की भी निसरा मिलने वाली है। तो आप सबकी भी जरूरत पड़ेगी उस कार्यक्रम में, आपकी भी जरूरत पड़ेगी। आपके यहाँ उतारेंगे, बाहर से जो आएंगे उन्हें यहाँ ठहराएंगे अपने ये जैन भवन में, और भी कहीं होगी, तो उस सब में भी आपकी जरूरत। और इस बार मुंबई की सारी विहार सेविकाओं को भी सम्मेलन में आमंत्रण दिया जाता है। तो चेंबूर तो नजदीक है, सबसे पहले रिजर्वेशन करके बैठ जाएगी आगे। तो ये बहुत बड़ा सुहाना अवसर आया है, उसका लाभ पूरा उठाना। परमात्मा के आज्ञा में कुछ भी बोला। अभी आप सबने साहिब जी का प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के पहले आपका माइंड ऑफ स्टेट क्या था, स्टेट ऑफ माइंड क्या था, और सुनने के बाद आपके दिलों में क्या परिवर्तन हुआ है? अगर कोई बैरोमीटर होता है तो हम जान सकते हैं कि कितना फर्क हुआ है, लेकिन आपके पास एक बैरोमीटर है। आपकी जितनी तालियां जोरदार होगी ये साबित करेगा कि आपने वास्तव में आज बहुत कुछ ग्रहण किया है। दूसरी बात, भले समय की अपनी सीमा पर कुछ बात मैं कहने से अपना को रोक नहीं पाऊंगा कि साहिब ने एक बात का जिक्र किया था। सचमुच इन्होंने चेंबूर में एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। जो हम निष्क्रिय थे, विहार सेवा ग्रुप के माध्यम से इन्होंने हमें सक्रिय बना दिया है। और आज हम सबको इस बात का गर्व है। और जिस नाम का साहिब जी ने उल्लेख किया, नरेश का, सचमुच हम सब भाग्यशाली है कि हमें नरेश के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जिसने, और मैं नरेश के लिए 4 पंक्तियां खास कहना चाहूंगा कि मोहब्बत हो गई है नरेश तेरे नाम से, मोहब्बत हो गई है नरेश तेरे नाम से, इसको कम नहीं होने देंगे। दीवाने हो गए हैं नरेश तेरे नाम से, इसकी आंच को मंद नहीं होने देंगे। कहने वाले कहते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, हम तुम्हारा सम्मान कम नहीं होने देंगे। तुम जिन शासन को झुकने नहीं दोगे और हम तुझे झुकने नहीं देंगे। और 4 पंक्तियां बनती हैं इन महिलाओं के लिए, इन विहार सेविकाओं के लिए, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है सचमुच आप सब बधाई के पात्र हो। तो मैं 4 पंक्तियां केवल आपके लिए कहना चाहूंगा कि तुम उस देश की जननी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की जननी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की सीता हो जिस देश में गूंजी थी गीता। और आप सबसे एक बात पुनः कहना चाहूंगा कि हे मेरी बहनों, तुम कहीं भटक न जाना व्यर्थ के हास्य परिहासों में। तुम कहीं भटक न जाना व्यर्थ के हास्य परिहासों में, और करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। समय की अपनी सीमाएं, बहुत कुछ कहने की इच्छा है पर समय अपनी गति से चल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कुछ सम्मान जो हमें करने हैं। 2025-26 में टोटल 253 विहार संपन्न हुए, 1533 किलोमीटर की यात्रा हुई, 280 साधु जी भगवंत को हमने विहार करवाया, 580 साध्वी जी भगवंत का विहार हुआ। और ये जो कुछ भी हुआ है
उनमें जिनका हम सम्मान करने जा रहे हैं, जो टॉप 3 के हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। और मैं चाहूंगा जब भी हम किसी का सम्मान करें, आपके हाथ खामोश ना रहें। सबसे पहले हम सम्मान करेंगे, अभी हमारे पास एक जो 3rd नंबर के लिए कंपटीशन है, 26 विहार जिन्होंने करवाए, सपना महेश राठौड़ और दीपिका कल्पेश जैन। कृपया दोनों आगे आइए। सपना महेश राठौड़ और दीपिका कल्पेश जैन, कृपया आगे आइए। જે વિચરી રહ્યા છે વીરતી માને આત્મ કેરી પ્રગતિમાં ના રંગ રાગની આસક્તિ માનિશ દિન રહે વિરક્તિમાં હે શ્રમણ વૃંદોની સંગે હે શ્રમણ વૃંદોની સંગે વિહાર સેવા કરવી છે મારે વિહાર સેવા કરવી છે મારે વિહાર સેવા કરવી છે મારે શ્રમણ સેવા કરવી છે મારે વિહાર સેવા કરવી છે મારે વિહાર સેવા કરવી છે મારે શ્રમણ સેવા કરવી છે મારે વિહાર સેવા કરવી છે। उसके बाद हीनाबेन कपिल भाई गाला तैयार रहे। इन्होंने 26 विहार करवाए हैं और अब जिनकी मैं बात कर रहा हूं, हीनाबेन कपिल भाई गाला, उन्होंने 32 विहार करवाए हैं। हीनाबेन, हीना मतलब मेहंदी, उनकी खुशबू ही इतनी आती है कि मालूम पड़ जाता है कि हीनाबेन आई हुई है। और हीनाबेन के सम्मान के बाद अब हम आवाज दे रहे जो सबसे पहले नंबर पे हैं, छायाबेन योगेश भाई शाह, जिन्होंने 34 विहार करवाए हैं। हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं और आपके जितनी तालियां बजा सको बजाइए। वास्तव में ये सब तुझ शासननी रक्षा काजे कुर्बानी छे मारी अंगे अंगे व्यापी गई छे जिन शासन कुमारी प्राण अमारो ऋण तमारो हे वीर शासन तारो वंदे शासनो वंदे शासनो वंदे शासनो वंदे शासनो वंदे शासनो। और जब हम इनकी बात करते हैं श्राविकाओं की कि इनको भले खुद को उपवास रहा होगा, ये भले ओली कर रही होगी या कुछ भी तपस्या कर रही होगी या घर में कोई विघ्न भी आया होगा, लेकिन इन श्राविकाओं ने अपने विश्वास और साहस के साथ इन सभी साथी भगवंतों को जो विहार करवाया, सचमुच आप सब अनुमोदना के पात्र है। अब हम बात करेंगे हमारे भाइयों की। सबसे पहले मैं नाम लूंगा प्रकाश भाई का, जिन्होंने 65 विहार करवाए हैं। बहुत बड़ी बात है। प्रकाश भाई का इनका मनीष भाई गाला सम्मान करेंगे इनका, प्रकाश भाई का थोड़ी जोर है। शासननी रक्षा जय प्यारी शासननी शोभा न्यारी शासननी आड़ाधारी शासननी जो बलिहारी शासननी रक्षा जय प्यारी शासननी शोभा न्यारी शासननी आड़ाधारी शासननी जो बलिहारी जयवंतु दे दीप्यमान आमारा वीरनु जिन शासनो मने गर्व छे मारू भाग्य छे मने सापड्यु वीर शासनम ए छे अम भाग्य विधाता एनी गौरवशाળી गाथा प्रण लईए ऊंची राखशु एनी परम पवित्र पताका जयवंतु दे दीप्यमान आमारा वीरनु जिन शासनम मने गर्व छे मारू भाग्य छे मने सापड्यु वीर शासनो। उसके बाद तैयार रहे भाविन भाई, जिन्होंने 72 विहार करवाए हैं। भाविन भाई,
महावीर तेरे जिन शासन की जो हमने विरासत पाई है, हाँ देख प्रभु तेरे संतानों ने तेरी छवि अपनाई है। ये बैतशकों की धारा बस लेती जाए नाम तेरा, इन्हें कैसे मैं समझाऊं कि है जैन कहाना गर्व मेरा। मर विहार सेवा करवी छे, मर विहार सेवा करवी छे, मर विहार सेवा करवी छे। और अब अगला नाम मैं जिनका ले रहा हूं, हितेश भाई, जिन्होंने 87 विहार करवाए हैं और पिछले 3 साल से लगातार इनका नाम नंबर 1 हमेशा रहा है, तो तालियां जोरदार बनती है। और ऐसे महापुरुष का सम्मान तो साहिब जी खुद ही करेंगे। मतलब ये भी बहुत बड़ा सम्मान है कि साहिब जी उनका सम्मान कर रहे हैं। मतलब ये बोल रहे कि 24 आवर्स रेडी है, कभी रात देखा नहीं, कभी दिन देखा नहीं। कभी दादर में इनके ऑफिस है, भले दादर से ऑफिस में यहाँ आना पड़ा हो, यहाँ जाना पड़ा हो, कुछ भी करना पड़ा हो, उनके लिए कोई कारण, कोई बहाना नहीं है, बस विहार करवाना ही करवाना है। हितेश भाई, अच्छा ठीक है, अच्छा वो आ रहे हैं। तब तो एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि जैसे साहिब जी ने कहा था कि जब भी आपको कोई अच्छा काम करने का मन में आए उसे कभी डिले मत करना। जब कोई खराब काम करने का मन में आए तो भले आप डिले कर देना, एक बार की बात मैं कल देखूंगी, लेकिन जब भी आपके मन में अभी आपको लगा कि भी इतने साल में मैंने विहार नहीं करवाया है और अब मुझे विहार ग्रुप में ज्वाइन होना है, ऐसा कोई अच्छा ख्याल आपके मन में आए तो मेहरबानी करके इस अच्छे विचार को आप तुरंत आजमाना, क्योंकि देखो समय का भरोसा नहीं है। मैं केवल 4 पंक्तियां इस बात कहूँगा कि समय के क्रूर छल का भरोसा नहीं, समय के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, समय के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, उनके अगले ही पल का भरोसा नहीं, उनके अगले ही पल का भरोसा नहीं। और अब हितेश भाई जो नीचे अपनी व्यवस्थाएं संभाल लेते, और मैं चाहूंगा कि महिलाएं भी और पुरुष भी सब खड़े होकर हम इनका सम्मान करेंगे। साहिब जी इनका सम्मान कर रहे हैं। हो चली है हो आज के दुनिया से जाके बोल दो, योगेश भाई आगे आइए। योगेश भाई, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, हो लहरा दो, लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो। एवा दुष्म काળ रात्रि માં जय जयकार मचावे, मारा वीर नु शासन गाजे, मारा वीर नु शासन गाजे। सभी एक साथ गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे। साहब एवर रेडी रहते, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं बेचता नहीं हूँ, तो एवर रेडी रहते, हर विहार में पहला स्तंभ उनका ही रहता है। हाँ, करवा बस साहिब जी ने कह दिया तो बात खत्म, नो आर्ग्यूमेंट, खत्म। बहुत बहुत अनुमोदना। एक सम्मान और बाकी है। जो पिछले वर्ष जिन महिलाओं ने कितने भी विहार करवाए हों, 1, 12, 25 कोई भी,
जिन महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जिन महिलाओं ने पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ज्वाइन हुआ है उसका नहीं, ये साल जो ज्वाइन हुआ है वो नहीं, पिछले साल लास्ट ईयर बिहार में थे जितने भी कराए हुए, भले 1 2 5, वो वो सब महिलाएं कृपया आगे आइए। तुझ शासनની રક્ષા કાજે કુરબાની છે મારી, ઓ વીર તારો શાસન મુજને પ્રાણ થકી પણ પ્યારો, તારા શાસન કાજે જીવ ફીટવાની હિંમત ધારો, જન્મ્યા અમે જીન શાસન માહી ગૌરવ એનો ધારો, વંદે वंदे शासनो, वंदे शासनो, वंदे शासनो, वंदे शासनो, मारे करवा છે હવે કેસરિયા, जिन शासन નાએ કેસરિયા, મારે કરવા છે હવે કેસરિયા, બિહાર તણાએ કેસરિયા, મારે કરવા છે હવે કેસરિયા, પ્રભુ વીર તણાએ કેસરિયા। રજો હરણના રંગ રમે છે, અષ્ટો સગડા કેવા ગમે છે, સર્વે જીવોને અભય દેનારા, એવા અણગાર અમારા, એવા અણગાર અમારા, ઓ જીન શાસન શણગારા, એવા અણગાર અમારા, એવા અણગાર અમારા, એવા અણગાર અમારા, ઓ જીન શાસન શણગારા, એવા અણગાર અમારા। વીરના વારસ બનીને વીરના વિચાર, વીરના સિંહનાદ કરે સત્વનો સંચાર, વીરજીના તત્વોને સમજાવે હરદૌ, શુદ્ધિના સ્વામી છે તીરથ મારું જંગમ, વીરના વારસ બનીને વીરના एक बहुत ही महत्व का कार्यक्रम चालू होने के पहले आप नीचे जाएंगे, चौवियार करेंगे, उसके बाद बाहर पुस्तक का स्टॉल लगा हुआ है। कल जिस महिला वो व्याख्यान में नहीं आई थी उनके लिए ये पुस्तक भगवान के 34 अतिशय और उसका पेपर ओपन बुक एग्ज़ाम, यह 80 रुपये का है, 50 रुपये में आपको नीचे स्टॉल पे मिलेगा। ये सिंपल गुजराती है। भगवान की पूजा करते समय आपके भाव बढ़ेंगे। मेरे भगवान कैसे, समौसरण, अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, चामर, सिंहासन, ये सारी बातें इसमें बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखी गई है। जिन्हें चाहिए वो ले ले। ये दूसरी बुक है, भगवान के 24 नाम कैसे पढ़े, कौन ऋषभदेव, क्यों अजीतनाथ, क्यों संभवनाथ, स्टोरी है, हल्की फुल्की गुजराती है। छोटे बच्चे जब अब वेकेशन पड़ेगा, रात को एक स्टोरी इसे सुनाओ, मज़ा आ जाएगा। 10 आश्चर्य इस अवसर पीढ़ी में 10 अक्षरा हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसकी भी स्टोरी है। जिन्हें चाहिए मिलेगी। हमारे परिवार के बीच यदि संप न हो तो हमारे परिवार का वियोग होता है, हो जाए तो संयोग होता है।
और अगले जन्म में भी हम वापस मिल सकते हैं। ऐसी एक स्टोरी है 150 पन्ने की, बहुत ही सुंदर, पहली बार जिन शासन के इतिहास में बाहर आ रही है। जिन्हें चाहिए 200 की है, 100 रुपये में। भगवान के फोटो फ्रेम, 8 प्रातिहार्य होते हैं ना, अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि। घर में जिसके अशोक वृक्ष होता है उसके घर में टेंशन, डिप्रेशन कुछ नहीं आता, ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे 8 फोटो है, उसकी फ्रेम बनाओ, अपने घर में लगाओ, रोज सुबह दर्शन करो। इसकी कोई आशातना नहीं है। देखिए सिर्फ अशोक वृक्ष कितना सुंदर, कितना घना, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट ने ऐसे 8 प्रातिहार्य 200 का है, 100 में मिलेगा। और ये एक बुक है जो आप अपने बच्चों को जैसे कॉमिक्स की पढ़ाते हैं, ये भी भगवान के जो 34 अतिश है, एक एक अतिशय का फोटो है। और आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो हमने इंग्लिश में पूरी बुक छपवाई है, आपके बच्चे आराम से पढ़ सके। पढ़ना कम है, देखना ज़्यादा है। ये धर्म चक्र सुना है ना, धर्म चक्र का नाम। ये क्या है? जामर। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन, यहाँ पे फोटो, यह पूरा पुस्तक। आज विदेश में इसकी बहुत डिमांड है। ऐसा यह पुस्तक वैसे 1500 का है, आज के दिन 1000 में मिलेगा। जिन्हें चाहिए वो ले सकते हैं। ग्रैंडियर्स ऑफ तीर्थंकरा, यानी कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है, इसे जानने से मिलेगा। तो जिन्हें चाहिए नीचे से ले सकते हैं। अब अंतिम आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रसादी। भले आज गुरु पूनम नहीं है, लेकिन जिस दिन गुरु मिले उस दिन आपको गुरु पूर्णिमा, तो ऐसा समझो। तो गुरु की प्रसादी इसमें क्या है, हमारे महाराज बोलेंगे 2 मिनट के लिए। नहीं लाओ, मुझे बताओ। ये गुरु प्रसादी में आपके लिए 3-4 ये रक्षा पोटली है, सूर्य मंत्र से मंत्रित की हुई है। आपको अपने हाथों पे पहनने की, आपकी भी रक्षा होगी। विहार में जाते हो, आपकी भी रक्षा जरूरी है ना, तो ये भी आपको पहनना जरूरी है। जब भी घर से बाहर निकलो कोई विशिष्ट कार्य के लिए, तो ये वासक्षेप है। कोई बीमारी हुई है तो भी डाल सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये वासक्षेप से भगवान का पूजन नहीं करना, गुरु महाराज का पूजन नहीं करना। ये अपने सर पे डालने के लिए वासक्षेप है, ये वासक्षेप रखना। आप जिस नवकार मंत्र का जाप करते हो, ये राइटिंग के अंदर नमस्कार महामंत्र है। और उसके पीछे जिस शंखेश्वर दादा की स्तुति हम बोले ना अभी, वो स्तुति है। जिसको नहीं आती है वो इसे पढ़ के कंठस्थ कर ले। इसके अलावा एक मोटिवेट करने के लिए एक सूत्र है, रोज एक बार पढ़ोगे आपका उल्लास विहार के लिए बढ़ जाएगा। यह सूत्र पढ़ने का है। और साथ साथ हम तो बार बार चेंबूर नहीं आएंगे, नरेश जी हमें कभी बुलाओला। एवर रेडी। ये रेडी हो, मैं रेडी हूँ। चातुर्मास, हाँ अब की बारी चेंबूर की 2027 कटे करावला 28 अतरुज मन कावेला। हाँ तो वरना वास्ते डॉम करना पड़े। 2000 तो घर है और चेंबूर में मैंने सुना है 2000 से ज़्यादा घर है। हम रिटेल के आदमी नहीं है, हम होलसेल के हैं। ये सब रिटेल का धंधा हम कर रहे हैं, वो आप विहार सेवा करते हो, इसलिए चातुर्मास में हम रिटेल का धंधा नहीं करते। समझ के आना, तो अपन भी तैयार है विहार चौमासा करने के लिए, लेकिन सोच के आना। तो आपको घर बैठे रोज का एक प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर जी महाप्रभावम जिनवाणी, उसका QR कोड है। इसके साथ आप जुड़ जाओगे, आपको रोज सुबह गुरुवाणी सुनने को मिलेगी। साथ साथ हमारी निश्रा में जो भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं उस ग्रुप में जुड़ना है, तो उसका भी QR कोड है। आप जुड़ जाओ, आपको पता चलेगा आज क्या कहाँ है क्या है,
सब कुछ जानने मिलेगा। आइए, और कुछ काम बाकी नहीं है, समय बहुत हो चुका है, आधे घंटे में चौबियार पूरा करना है, मुझे भी वहाँ जाके करना है। तो हम यहाँ से हमारे वंदित भाई गीते लेंगे और सबसे पहले हम नरेश भाई को यह कवर अर्पण करेंगे। उसके बाद लाइनसर पहले महिलाओं को और लेडीज फर्स्ट, पहले लेडीज़ को दिया जाएगा और उसके बाद हमारे जेंट्स को दिया जाएगा। चलिए आप स्टार्ट कीजिए। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। आशासन तारण हारू, आतम पावन करनारू, जीवोनो हित करनारू, आभवथी तारण हारू, आशासन तो प्राण थी प्यारू छे, जिन शासन अमारू छे। राजभद्री वाटे जाए संयमनी सरगम लो गाय, वंदन वंदन धने वंदन वंदन। ओ मारे विहार सेवा करवी छे, मारे विहार सेवा करवी छे, मारे विहार सेवा करवी छे, मारे विहार सेवा करवी छे। तीर्थ रक्षा संभाળી कोઈએ विहार सेवा जाली, जीव दया काजे वीरोए प्राण दीदा धारी। ज्ञानीओ शुद्ध प्रसरावे, युवा उत्कर्ष करावे, आदर्शों ने संस्कृति काजे राज प्रतिबोध आपे। जयवंतु दे दीप्यमान आमारा वीरनो जिन शासनम, मने गर्व छे मारू भाग्य छे, मने सापयु वीर शासनो। वैशाख सुद 11 दिवसे शासन स्थाप्यो ते तो, अवतरवा काजे नावड़ो पड़तो मूक्यो ते तो। लोहितड़ा बूंदे बूंदे शासन प्रेम निपावो, वंदे शासनो, वंदे शासनो, वंदे शासनो, वंदे शासनो, वंदे शासनो। ओ गुरुदेव पधारे छे, मारू पुण्य वधारे छे। 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 तारो ने मारो संबंध न्यारो, तारो ने मारो संबंध न्यारो।
આવશે તારો સથવારો મને યાદ આવશે તારો સથવારો ગુરુવર મારા પ્રભુવર જેવા દીઠા ન કોઈ જગમાં એવા તારા કુળમુખ તાવર જન્મ મળ્યો એ મારો પરમ સૌભાગ્ય છે તારા ઘોડે મારો શિર થયો મારું આભાર છે પ્રશાસનમાં ભરી જાઓ બસ તારા ભય ભરી જાઓ બસ દેવા મને આશીષ આપજો તારા સહી મને હોગા અજવાળો બસ દેવા મને આશીષ આપજો थोड़ा ट्रॉफी नीचे, हाँ बस सामने। बनी जाए तुम्हारा मोबाइल है ना, बाद में नहीं आता आपको डिलीट नहीं करना है, मेरे को डिलीट नहीं करना है। अभी अगले साल डबल करना इसके। जेना पावन पगलाती धरती धबकार करे, जेना पावन पगलाती धरती धबकार करे, ने वीर प्रभु नो वेश धरी संयम शणगार करे, ने वीर प्रभु नो वेश धरी संयम शणगार करे, देवो पर साधु जीवन नो जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। कोई भक्त बनी ने आवे, अरे आवे आवे आवे, कोई भक्त बनी ने आवे, अरे आवे आवे आवे, पण मन माहे मुनिवर ना हर खावे ना हर खावे, पण मन माहे मुनिवर ना हर खावे ना हर खावे, कोई उपसर्गो वरसावे, कोई उपसर्गो वरसावे, एनु हयु तो रमतु समता भावे, सन्मान अने अपमान भूली सरखो उपकार करे, देवो पर साधु जीवन रो जय जयकार करे, जय जयकार करे।